ऐसे ही इनको बेल दे दी जाएगी तो ये तो यही काम करेंगे। ये तो एक बिजनेस हो गया सर, कि आप करोड़ों रुपया कमाओ, लोगों से ठगो और 4-5 महीने जेल में रह लो और बाहर हो जाओ और फिर किसी को कुछ बनो। ये एक धंधा बना लिया इन्होंने। चलिए ठीक सर, कल ही मुझे इस विषय में मालूम पड़ा है तो मुझे थोड़ा समय चाहिए सर। ये इससे पहले ये आज 5वीं बार लग रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं बढ़ाया जाता मामला, और आज इतने ऑलरेडी वकील खड़े हुए हैं, वो तो बेस्ट सर। एक्चुअली में सर मैं यहाँ आपको करना हो तो आप बहस वर्किंग हूँ, मुझे आई एम नॉट गोइंग टू एडजॉर्न दिस मैटर एनीमोर। आपको बहस करना है तो आप कर सकते हैं, टाइम के लिए बस It's not para 6 plot of your lordship's earlier order. For due consideration of submissions and on perusal of the case diary, including the documents filed on record, this court is with a considered opinion that looking to the seriousness of the offence and the huge amount involved in the role ascribed to the applicant, that the innocent investors have been defrauded of their money. No case is made out accordingly dismissed. However, the applicant for the lordship was kind enough to grant his liberty to renew his prayer after the charges are framed. Now, what charges are framed and what in the charges, not section 409 has been deleted by the Learned Trial Court. So I am being implicated only for 420 and 406 now, which brought both punishments are less than 7 years. I need not even mention that to your lordship. Those charges have been. That's my first submission. But secondly, the allegations are not to the effect that I, along with my 4 more family members, got into a development agreement with a company called as Tholia Constructions to develop the piece of land, and then eventually after the registries have been done, development is complete, we shall sell this piece of land to the proposed development lot. Before the RERA permission was taken by the developer chose to enter into agreements with number of persons. There were about 20, 30, 40 persons, and these agreements are a part of the record with the prosecution, which say that he has entered into an agreement naming us and saying Tarfe Tholia Construction. None of these agreements has been signed by me, by virtue of which there is an agreement between Tholia Construction and the prospective purchaser. None of these agreements bear my sign. So every agreement that has been executed by Tholia Construction, giving some kind of enticement to the prospective purchaser that we will subsequently sell this piece of land to you. By doing this, he's collected a huge amount of money. Out of that money, before the first amount of money was paid by the purchaser to Tholia Construction, not earlier than that, he has credited 40 lakhs in my account. That was because of the fact that as we get into a development agreement, we give him some right subsequent to the completion of development to sell these plots, and also he has to pay us some amount of money. But before that amount was collected from the purchaser, so there is no credit, and I am repeating myself, there is no credit of any amount from any purchaser to the present applicant at all. Apart from that 40 lakh. No, that 40 lakhs is also by the developer, not by any purchaser. Yes, so that is all that I have gained from the developer, which otherwise also I was entitled about as far as I am individually concerned. My third submission is, in a recent judgment note, the Honorable Supreme Court has categorically stated that 406 and 420 can never coexist. Either it is 420 or it is 406. 406 presupposes the element of entrustment of a property. Whereas in the present case, where I agreed to sell a property to somebody else, assuming that I did, there is no entrustment of property. It can at best, for the case of the prosecution, be an element of defrauding somebody, and then by practicing that deception, ask somebody to pay X amount of money to me, whereby he incurs a loss and I incur a profit. And just with my Lord's permission, pass on the judgment, but I was only going through it yesterday, para 13. The Lordships were categorically. So either it's 420 or it's 406 is definitely not paid out. Para 13. I'm sorry I didn't take a copy out. I just read it yesterday. Yes, again, it's not. May I just complete too? Now, there are, apart from the agreement executed by Tholia Construction in favor of this prospective purchaser who unfortunately been defrauded, there are receipts also issued by Tholia colonizers to these purchasers. Now, these receipts also are part of the challan, wherein they have only been signed by persons Tholia Construction Private Limited or to the director. So even the receipts which were issued were not signed by me. No money collection, no receipts, no signature on the agreement plot, and no offence as far as I am committed, not even 420 plot. 406 is out of question because of this judgment. Don't get a default. That's the only submission. I will not suffering incarceration for a considerable period of time now. Bro. I was incarcerated on 21/6/24. And Arnesh Kumar obviously comes into, so I ought not to have arrested, bro, going by the human presumption. Yes. बताइए, तो टोटल अमाउंट कितना है?
उनके खाते में गए 1 करोड़ 5 लाख। हाँ, Balance में भी account में बढ़िया है। सब यही है। अरे उनको बोलने दो। इंडिया के खाते में अलग है, बाकी इसके पर्सनल इसके खाते में इसकी रेन्यू में इसने एडमिट करो 1 करोड़ 50 लाख रुपए डालने को चाह आपका इंडिविजुअल देखो इनके इनके पार्ट में फ्रॉड कहाँ पर आया? इंडिया जो है मतलब ये पार्लर में जो है और ये वो अरेस्ट हुए कि नहीं? बोलिए ये रेस्पॉन्डिंग। These family members are also responding. There are 4 other family members. They ऑफ द are- एप्लीकेंट। Yes, sir. In such they have criminal antecedents from the same age. In such if you Lord may permit kindly see this light. आप ये हो गए बहस? इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें 2022 का है मैंने और 2023 की माइनर 26 जो चुरामी 500 और 25 आम से का है मैंने 2005 का है मैंने 1995 का है डिफरेंशियल ऑफ अच्छा, और ये जितने भी कंप्लेनेंट है उनके साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है वो इनके सिग्नेचर है उसमें किसी के या कंसेंट उनका कहीं? इनके चीजें करते नहीं पास करता तो जो परचेसर के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या सेपरेट एग्रीमेंट है या खाली रसीद लिख के दे दी? क्या की मतलब एग्रीमेंट एग्रीमेंट हुआ है? और यही दिखाते थे मान लो कि लीव जो लेकर जाते थे और लीव टेली करवाते थे। तो आपका क्या कहना? Sir, basically, the आप कौन है? यू आर दी कंप्लेनेंट। I am for 5 बताइए। Basically, sir, present applicant is not only the agriculturist in this matter. He is a partner, sir. The total deal was 17 बीघा, जो टोटल जमीन इनने सेल आउट करी थी खोलिया बिल्डर, जिसमें से सर 11 का जो 11 करोड़ 68 लाख का अमाउंट है वो डिफरेंट टाइम पे NEFT एंड चेक्स के थ्रू सुरेश एंड अदर फैमिलीज मेंबर को दिया। लेटर ऑन सर इस 17 बीघा में से जो बार बार बोल रहे हैं कि मैं किसान हूं, मैंने सिर्फ एग्रीमेंट करा 2.20 के जो प्लॉट्स है सीआर वैल्यू के वो इन्होंने अपने पास रखे प्रेजेंट उन प्लॉट्स में से जो मेरे 5 कंप्लेनेंट्स है उनको ये सुरेश ने हैंड ओवर करवाया। एक्टिव रोल था उसमें कि ये प्लॉट्स मेरे पार्ट के हैं, इनको मेरे को देना, इनको जो अकाउंट में पैसा भी है वो बोलिया के थ्रू जा रहा था। सेकेंडली सर आप काइंडली सी दिस जाहिर सूचना सर जो मैंने आपके पास दी है। इट वॉज इशूड बाय द लॉयर छोलिया कंस्ट्रक्शन। ये बोलते हैं कि मैं पिता सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है सुरेश इत्यादि जिला अपने द्वारा स्वतः आधिपत्य की भूमि सर्वे नंबर प्रेजेंट बीघा की 17 बीघा भूमि का विक्रय मेरा पक्षकार कर एक विक्रय अनुबंध मेरे पक्षकार के पक्ष में निष्पादित करते हुए कुल प्रतिफल राशि 40% हिस्सा प्राप्त कर लिया है तथा कुछ समय से विक्रेतागण द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन में आनाकानी की जा रही। मेरे पक्षकार का अंदेशा है कि सुरेश पिता इत्यादि इन्होंने सदर भूमि को अन्यत्र विक्रय करने का बोझ कारित करने के लिए प्रयासरत किया है। नाउ सो काइंडली टर्न द पेज एंड जाहिर सूचना का प्रतिवाद। इट वाज एनी अदर पर्सन? सर मैं कहना हाँ बताइए। अरे एक मिनट। यस सर पहली चीज तो ये कि 409 का जो एक इनसे हटाया है उसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। एक केस है हर्षद एस मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य 2001। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार किया है कि क्या आईपीसी की धारा 409 उन व्यक्तियों द्वारा वित्तीय हेराफेरी के मामलों में लागू होती है जो लोक सेवक नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह धारा केवल लोक सेवकों तक सीमित नहीं है और इसे उन स्थितियों में भी लागू किया जा सकता है जहां बैंकरों या वित्तीय एजेंटों को संपत्ति सौंपी गई हो। माय लॉर्ड इसमें अब किन लोगों पे ये लागू होती है अरे भाई उस ऑर्डर को तो आप लोगों ने चैलेंज किया नहीं किसी ने? अभी करेंगे माय लॉर्ड। हट गया ये मैं उस समय उसके लिए बचा कर बाकी की पहले। हाँ माय लॉर्ड इसमें जो अभी नए कंप्लेनेंट आए उनकी एग्रीमेंट जी क्या है इसमें? अब एग्रीमेंट की जो लाइन है पहले वाली उसमें यह लिखा हुआ है कि यह विक्रय अनुबंध ले आज दिनांक को आंशिक विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर लिख देने वाले। अब कौन कौन लिख रहे हैं? मेरे सीनियर एडवोकेट ने एक्सेप्ट किया है कि इनने और इनके परिवार वालों ने एग्रीमेंट किया। Lord, I'm sorry, let me make it. No, Lord, only thing is, Lord, I said these are the allegations. These are the allegations. Not that I'm तो किया है ना कालो ना इधर से, ये तो एडिटेड है और ये तो कागजों पे है कि एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट करने का मतलब क्या होता है कि 2-4 रुपए लेना है और कुछ भी नहीं लिख के देना है, ऐसा तो होता नहीं है।
आपने एग्रीमेंट किया है, इसका तात्पर्य कि आपने अपने सारे राइट्स दे दिए हैं उसको। आपने पैसा लेके आपने बोला है कि हमारे बिहाफ में तुम पैसा लोगे। अब इसकी पहली लाइन पढ़ेंगे आप तो उन्होंने 5 लोगों को आम मुख्तियार बनाया है, सुरेश जाट, ताराबाई, शकुबाई, अर्जुना और प्रद्युम्न। इन 5 लोगों ने पैसा बांटा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बांटा है। सर ने कहा है अभी कि परिवार के सभी के खातों में पैसा गया है, खुद ने एडमिट किया है। सर इसकी अगली लाइन देखेंगे एग्रीमेंट। अच्छा, इन्होंने पावर दिया इसको थोलिया कर। हाँ, जब कोई आदमी पावर देता है तो अपने सारे राइट्स को ट्रांसफर कर देता है। तो सर 10 नंबर का पेज देखिए इसी एग्रीमेंट का। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विकास अनुमति से 1 वर्ष में प्रस्तावित कॉलोनी हेतु समस्त अनुमति से सहित तय स्पेसिफिक अनुसार विकास कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। मतलब आप पैसा ले लेते हैं, किसान भी पैसा ले लेता है, कॉलोनाइजर भी पैसा ले लेता है, और आज 1.5 साल से ज्यादा हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करते हैं, और 1.5 साल में इंदौर के प्लाटों की कीमत डबल हो जाती है तकरीबन। आप पैसा लेके दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, और हमारे कॉलोनी में हमारे प्लाटों की बारी आती है तब बोलते हैं कि हमारा इस केस से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, ये जगह कहाँ पर है? ये जगह रिग्नोदिया चौराहे पे, नई जेल के आगे, जस्ट बिल्कुल आगे, मतलब 500-600 कदम पे है ज्यादा से ज्यादा। मतलब वहां के भाव अभी डबल हो गए, तो ये तो डबल कमा लेते हैं। और हम जो 300 लोग हैं यहाँ पर कंप्लेनी, हमारे पास 1 रुपया ना तो आता है ना हमको प्लाट मिलते हैं। अब यदि एक ऐसे ही इनको बेल दे दी जाएगी तो ये तो यही काम करेंगे। ये तो एक बिजनेस हो गया सर, कि आप करोड़ों रुपया कमाओ, लोगों से ठगो, और 4-5 महीने जेल में रह लो और बाहर हो जाओ, और फिर किसी को कुछ मत। ये एक धंधा बना लिया इन्होंने।